ओके देन, तो फिर आज हम करने जा रहे हैं CDS 2022 को। ठीक है। और 3 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे ख्याल से एग्जाम खत्म होते होते तक हम तकरीबन 5 to 7 ईयर्स का तो कर ही लेंगे। 2019 2018 तक तो कर ही लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई हमारा कॉम्प्रिहेंशन है इस बार। ठीक है, सेट में चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन को ही पहले करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। मैं रीड करता हूँ और फिर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। China's government announced on April 19 that it had signed a landmark security pact with the Solomon Islands, evoking concern from Australia and the US. The agreement is the first of its kind that China has agreed with any country and underlines its ambitions to play a security role in the Pacific. The final version has not been made public. It will pave the way for China to deploy its security forces there. The Solomon Islands can request police and military personnel to assist in maintaining social order, while China can make ship visits and use its port for logistics. This will give China's vessels a strategic foothold in the Pacific, in a region close to Australia and Guam, where the US has a naval base. Both countries unsurprisingly expressed concerns, with Washington even dispatching a senior official to Solomon Islands who will take up the pact, as well as plans to reopen the US embassy there. The significance of the pact extends beyond the immediate regional security concerns in the Pacific. The Solomon Islands government said that the agreement does not imply China will build a base there. The pact does, however, relate to a second key pillar of China's About Peaceful Rise doctrine, which was as popularized by the Panchil, or the 5 principles of peaceful coexistence, the non-interference in the internal affairs of other countries. The deployment of security forces in a foreign country certainly does not square with that idea. China has already begun to do so elsewhere, albeit on a limited scale. China's past commitments on military bases and non-interference were intended to show the world Beijing would not seek to become a global hegemon. Its favored term to describe the US. ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ देखें, सबसे पहला आ जाता है कि चाइना के ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, चाइना's ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग ए सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स इज, एक ऑब्जेक्टिव की बात कर ले रहे हैं। दूसरे में आ जा रहा था पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनीज डॉक्ट्रिन ऑफ, चाइना की कौन सी डॉक्ट्रिन को ये पैक्ट सिंबलाइज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय बीजिंग कुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेगेमन। और सबसे सेकंड लास्ट में आ जाता है व्हाट डज स्क्वायर विद दैट आइडिया इम्प्लाई इन द पैसेज। उसके बाद व्हाट डज स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इम्प्लाई इन द पैसेज। 5 क्वेश्चन है इस बार। आपके 3 पैसेजेस हैं, हर बार हमेशा 2 पैसेजेस रहते थे, इस बार आपके 3 पैसेज हैं। इससे पहले जब मैं एग्जाम दिया करता था 2015 16 17 18 तक, तब नॉर्मली क्या हुआ करता था, तब नॉर्मली आपके एटलीस्ट 2 पैराग्राफ हुआ करते थे और दोनों 10-10 क्वेश्चन वाले हुआ करते थे, तो स्कोरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी। ठीक है, चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट तो हुई है पहले से, बट आई बिलीव वो डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से उसी चीज की हैबिचुअल है। ऐसा नहीं कि एकदम से चीजों में चेंज आए, है ना। चीजें उसी लाइन ऑफ लेंस पे आ रही है। अगर मैं अपने से कंपेयर करूं तो फिर मैं उस लेवल की बात कर सकता। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले, चाइना's ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अप सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स इज to contribute in ensuring security in the Pacific. भाई कौन सी लाइन पर लिखा हुआ है? लाइन बताओ एग्जैक्टली, मुझे कोट करके Sir, sixth line. 6th लाइन में, and underlines his ambitions to play a security role in the Pacific. ठीक है। सेकंड की बात करेंगे, the pact symbolizes China's doctrine of, Peaceful coexistence. कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे लाइन लाइन के साथ बताया करो भाई। Sir, sixth line, second paragraph. ये रहा है ना? ठीक है। कौन सा आएगा इसमें भाई? Principles of peaceful coexistence. Which one of the following is implied by Beijing could not seek to become a global hegemon? Sir, option C आएगा और second last line, second paragraph. Option C, China's past commitment on military bases and non-interference were intended to show the world Beijing could not seek to become a global hegemon. Its favored term to describe the US. बिल्कुल, बीजिंग जो है वो वर्ल्ड पे कंट्रोल नहीं करना चाह रहा है। What does square with that idea imply in the passage? agreeing with the multiple views. No. Oh, agreeing with the multiple views. कौन सी लाइन में? not in the agreement with the idea. लाइन बताइए मुझे, कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइन? Yes, where बोलो तो।
तो सेकंड पैरा में था ये पंचशील के नीचे आंसर की से जवाब देख के नहीं देने मित्रों, ठीक है। हमें ये इंश्योर करना है कि हमें वो चीज़ आती हो। आंसर की से आप देख के अगर यहाँ पर जवाब देंगे तो वो जवाब दे तो देंगे, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बने, है ना। बोलिए। पंचशील से नीचे वाली लाइन फोर्थ। 1 2 The deployment of the security forces in a foreign country certainly does not square with that idea. Does not square with the idea का मतलब हो जाएगा Not in an agreement. not in agreement with the idea. सर बट क्वेश्चन में तो बस वेयर विद दैट आइडिया लिखा ना। क्वेश्चन में लिखा what does square with the idea imply in the passage. तो square with the idea का मतलब having multiple ideas, not in agreement with the idea, imposing personal views on others, agreeing with the multiple views. अच्छा नहीं 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 नहीं, इसमें अभी ही आएगा। स्क्वायर विद द आइडिया का मतलब यही होता है, एक स्क्वायर में ना होना, मतलब कि एक फ्रेज होता है ये बेसिकली। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि आप किसी के साथ एग्री नहीं कर। इधर ऊपर पंचशील की बात हो रही है, नीचे वही चाइना उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो वो हो जाएगा ना, अपोज कर रहा हो। हाँ, उस कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी फ्रेज की वजह एग्जैक्ट उसकी वो की वही उठानी होती है, ठीक है। खासकर जो भी आपके पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में ले रखी है, तो यहाँ पर तो सीधा सा कंटेक्स्ट निकलता है कि भाई चाइना जो है वो बाकी के आइडिया के साथ में एग्रीमेंट में नहीं है ना। कि भाई द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन अ फॉरेन कंट्री सर्टेनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। मतलब इसमें पैराग्राफ में जो बंदे ने एक्सप्रेस किया है कि भाई आप किसी फॉरेन कंट्री में अपने सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये जो जितनी भी चीजें आपने बताई हैं इसके साथ में तो आप एग्रीमेंट में नहीं है ना। तो नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फुटवर्ड इम्प्लाइंग द पैसेज? लैंड लैंड एक्सेस। लैंड एक्सेस, ठीक है। फॉर ये तो बहुत इजी था, इसमें तो क्लासिकल लिटरेचर भी यूज नहीं की गई, ये तो एक करंट अफेयर्स के पीस की तरह था, तो इसको करना बहुत इजी था, है ना। लेकिन अब जैसा आप लोगों को पता है कि भाई पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है इसकी डबल लेंथ के पैराग्राफ आ गए हैं। अब इस बार मेरे ख्याल से पैराग्राफ की जो लेंथ है वो इसलिए कम कर रखी थी क्योंकि पैराग्राफ्स आपके ज्यादा थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इट्स टोटली अप टू द यूपीएससी। जब भी लोग बात करते हैं ना कि भाई यूपीएससी ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो वी नेवर नो, हमें नहीं पता कि यूपीएससी कैसा कर सकती है। इस बार हो सकता है कि आपके आधे सेक्शंस हटा के दूसरे नए सेक्शंस इंक्लूड कर दिए जाए। यूपीएससी कुछ भी कर सकती है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर उनको लगता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये बच्चे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके हिसाब से वो डाल देती है ना। तो हम यहाँ पर कुछ भी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन वाली चीजें बहुत बर्बाद होती है कि 250 इडियम्स और फ्रेजेस जो आ जाएंगे, 300 एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो आ जाएंगे, इस तरह के जो वीडियोस या लिस्ट क्लिकबेट्स वाले बनते हैं, दे वॉन्ट गुड, ठीक है। चलिए, among the major objectives of the Glasgow summit was to frame the foundation of an international carbon trading system listed in the Paris Agreement to achieve the target of the net zero emissions by 2050. It would enable nations to transfer credits to each other and offset their emission targets. Critics of the trading system, and there are many, say it would give leeway to developed countries and companies that are highly polluting to stave off making deeper cuts in their low emissions by buying credits from poor countries at exploitative prices. There are also major differences over whether the new trading system will recognize historical emissions permitted under earlier protocols. Others want rules that permit double credits for the nation funding a particular carbon reducing project, such as the regeneration of forests to act as a carbon sink, and for the country implementing. A third issue is whether a share of the revenue from such a bilateral trading agreement will go toward the United Nations Adaptation Fund. There have also been concerns about the integrity of the accounting system for such credits. पहले क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर। दूसरा, व्हाट इज द थर्ड इशू बीइंग मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द शेयर ऑफ द रेवेन्यू। उसके बाद फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक, इसका क्या मतलब है। एंड व्हाट इज द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। और सबसे लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोकॉल इन द टेक्स्ट। वैसे क्वेश्चन देख के पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि बहुत ईजी सा लग रहा है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना होता है कि चुप बैठे रहना होता है। यस सर। जब तुम लोगों से रिस्पॉन्स बोलता हो तो तुम लोगों को रिस्पॉन्स भी देने होते, ठीक है। बाकी जगह पर जहाँ पर हम रिस्पॉन्स नहीं देने दिया जाता, वहाँ पर लोगों को रिस्पॉन्स देने होते हैं। तो भाई बताइए, क्वेश्चन कोई पैराग्राफ में डाउट है या क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई ट्विस्ट करके दिया है, नो सर। नहीं पूछी गई हो, ऐसा कुछ लग रहा है? नो सर।
मतलब फुल स्कोर कर सकते हैं इसमें। यस सर। यस सर। हाँ, तो भाई बताइए सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम, है वो क्या है यहाँ? एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन द नेशन। कार्बन क्रेडिट, एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट बिटवीन नेशंस, कहाँ लिखा होगा? देखो आंसर मुझे बता रहे हो तो मुझे हाँ, फोर्थ कि भाई कहाँ पर लिखा है। सर फोर्थ लाइन, इट वुड फोर्थ इनेबल लाइन में, फोर्थ लाइन में है ना। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लिस्टेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2050, it would enable nation to transfer credits to each other and offset their emission targets। तो कौन सा था? एक्सचेंज ऑफ कार्बन कार्बन क्रेडिट्स। क्रेडिट बिटवीन दैट। ठीक है, इस तरीके से देखो आपको आंसर देना होता है, पैसे रेंडमली मत दीजिए। व्हाट इज द थर्ड इशू बीइंग मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द शेयर ऑफ द रेवेन्यू? The revenue may not be shared with the United Nations Adaptation Fund. Best forest to act as a carbon sink means सर फॉरेस्ट best reading कार्बन इमिशंस कहाँ लिखा है? इनके ऊपर है थर्ड फिर इशू। इसके ऊपर है other want rules that permit double credit for the nation funding a particular carbon reducing project such as the regeneration of forest to act as a carbon sink and for the country implementing it. So forest to act as a carbon sink means forest reduces carbon emission. What is the concern about the integrity of the accounting system? countries won't would not be adhering to credit system। कहाँ लिखा है ऐसा? सर ये क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम वाला जो पैराग्राफ है, emission target। Critics of the trading system, and there are many, say it would give leeway to develop countries and companies that are highly polluting to stay of making deeper cuts in their no emissions by buying credits of poor countries at exploitative prices। तो क्या आंसर होगा इसका? Developed countries and companies would not be adhering to the credit system. Which of the following what is nearer to the meaning of the word protocol in the text? Formal ways of doing something। Formal ways of doing something। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The RBI expect inflation at 6.7% in 2022-2023. Recent government data also suggests that inflation has become more broad-based. Excluding the volatile components such as food and fuel, core retail inflation was around 7% in April, with almost all subgroups in the index witnessing elevated inflation. And considering the inflation in the pipeline, the wholesale price index continued to be in double digits. Price pressures are unlikely to dissipate in the immediate term, according to analysts, while manufacturing firms have been concerned the rise in input costs, it remains incomplete in the case of the services sector. However, as demand firms up, the pass-through is likely to gather traction. This combination of factors suggests that inflation may not fall dramatically as and when commodity prices fall. Prices may prove to be a tad sticky on the downside. The RBI's revised quarterly forecast for inflation also seems to suggest so. Inflation has now been projected at a 7.5% in the first quarter and 7.4% in the second quarter, trending downwards thereafter at 6.2% in the third quarter and 5.8% in the fourth quarter. Implicit in this quarterly inflation forecast is also the acknowledgement that inflation will likely exceed the upper threshold of the central bank's inflation targeting framework for 3 consecutive quarters, considering the risk that the unanchoring of inflation and expectations pose to macroeconomic stability and the country's growth prospects. The central bank must look beyond its quotidian custodial responsibilities and continue to focus on maintaining price stability, attaching primacy to inflation management. टॉपिक जनरली आपको कुछ कुछ ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि थोड़े से कोर किसी न किसी को बिलोंग करते हैं ना, टेक्निकल हो जाते हैं, तो कई बार जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। पहला इसमें क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन? आराम से निकाल सकते हैं भाई हम, है ना। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को देख लेंगे। व्हाई आर प्राइसेस अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्ट टर्म? In what context are the words passed through used in the passage? And explain the meaning of the word quotidian as used in the passage, and choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanchoring as used in the passage. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला आ जाता है, what are the volatile components of inflation?
components such as food and fuel for line. जैसे फूड एंड फ्यूल, ये तो हम वैसे ही ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, है ना, फूड एंड फ्यूल, ठीक है। Why are prices likely to abate in the short term? Inflation in the pipeline, sir. The 7. 5, 6, 7. And considering the inflation in the pipeline, the wholesale price index continue to be in double digit. Price pressures are unlikely to dissipate in the immediate term. In what context are the words pass through used in the passage? पहले तो बताओ लिखा कहाँ? सर however के चेवरी However कहाँ लिखा हुआ है भाई? लाइन मेरे बताया करो ना, फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा। so first However, as demand firms up, the pass through is likely to gather traction. तो क्या होगा pass through यहाँ पर? यहाँ क्या बताया है? According to analysts, while manufacturing firms have been passing on the rise in input cost, it remains incomplete in the case of the service sector. है ना? As demand firms up, the pass-through is likely to gather traction. मतलब that service sectors will increase prices as demand picks up, जबकि manufacturing firms ने ऐसा नहीं किया, है ना? वो bear कर रही है burden of the input cost. लेकिन exactly meaning इसकी यहाँ से आएगी, वो आपकी क्या बोलते हैं पासिंग ऑन कर रही है, जबकि सर्विसेज सेक्टर जो पास थ्रू कर रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोटिडियन एज यूज्ड इन द पैसेज। सर नीचे से थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, डे टू डे। क्या होगा भाई? Sir, day to day. कोटिडियन का क्या होगा? डे टू डे, ठीक है, डे टू डे ही लग रहा है। कंटेक्चुअल मीनिंग हाईली पता चल रही है। Choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanchoring as used in the passage. Unanchoring का क्या मतलब आ जाता है? Considering the risk that the unanchoring of inflation and inflation expectations pose to macroeconomic stability and countries' growth prospect, the central bank must look beyond blah 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 blah. Unanchoring का क्या मतलब होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दैट विल बी सिक्योरली एंकर्ड। तो वो तो अनएंकरिंग कहाँ से हुआ? अगर सिक्योरली एंकर्ड हो गया तो एंकरिंग आना चाहिए ना। शिप एंकर डालता है मतलब स्टेबल। Disjoint between inflation and its expectation. The disjoint between inflation and its expectation, मतलब considering the risk that the unanchoring of inflation and inflation expectations pose to macroeconomic stability। बिल्कुल सही, ठीक है। ये कोई हमारे पैराग्राफ। अब आ जाते हैं इसी पार्ट पे, that will be synonym। He is considered the harbinger। harbinger of peace, आपने सुना होगा ये टर्म। नहीं सुना कभी ये? एडवांस मैसेंजर। एडवांस मैसेंजर। वीडियो लैग तो नहीं हो रहा मेरा? No, sir, no. सर लोगों के रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है इसीलिए। एडवांस मैसेंजर को हार्बिंगर बोलते हैं। द विस्पर ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। Landscape. लैंडस्केप। हर एक्ट वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट appreciable, deplorable, लेमेंटेबल। आपको पिछला कैसे हो गया? वो तो डिप्लोरेबल हो जाए, है ना? डिप्लोरेबल नहीं उल्टा छोड़ना ना किसी को मतलब ये इसका हाँ मतलब कि तौहीन करना, किसी की निंदा करना। हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। लेमेंटेबल का मतलब होता है बहुत डिसअपॉइंटिंग होना। तौहीन करना कहाँ से हो गया? और डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? सेम आ जाता थोड़ा सा। किसी ने बहुत डिसअपॉइंटिंग काम किया हो तो उसको कंडेम किया जाता, उसकी निंदा की जाती, ठीक है। हाँ मतलब वही ना, वही निंदा करना, तौहीन मतलब कि तूने गंदा काम किया वही। तौहीन हालत ना लगे। तौहीन करना तो हो जाता है इंसल्ट करना। द लीडर्स एंडोरेंस पेड एंड ही वॉन द इलेक्शन। एंडोरेंस तो भाई आपका जो है वो पेशेंस है ना।
सी का मतलब क्या? इनिग्मा का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? वो मूवी देखिए एलन ट्यूरिंग वाली। पहली बात तो ये है कि यार अपना कौन सी वाली? सॉरी। स्पीकर लगा रखा है तो उसको ऑफ कर लो। हाँ, एनिग्मा एलन ट्यूरिंग वाली मूवी देखी है, द एनिग्मा नाम से। एनिग्मा का मतलब होता है पजलिंग, पजल, मिस्टीरियस। ठीक है। वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर। एक्सपीडिशन। एक्सपेडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब जॉन्ट होगा। यस सर। ठीक है, एक्सपीडिशन इस बार शायद आपके 5 ही है भाई। ठीक है, किसी में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी एक में कमी हो जाती है। चलो अब आगे देख लेते हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। पहला वाला आ जाएगा, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट मेक अ डिसीजन। आगे क्या है? I decide not to take a decision. आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, बिल्कुल सही। इफ आई वर इन योर पोजिशन, आई वुड नॉट एक्सेप्ट। आई वुड नॉट हैव बीन क्यों आएगा भाई? आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपेंसेशन। इमेजिनेटिव है ना कि भाई अगर मैं आपकी पोजीशन में होता तो मैं ऐसा नहीं करता। वुड नॉट हैव बीन नहीं आएगा। हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड। शी कैन नॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ नहीं होगा, है ना। जनरल आपका नहीं आएगा। शी इज टू फील लाइफ टू बिग टू अंडरस्टैंड नहीं, डी आएगा। शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड। देयर आर मैनी कैरियर ऑप्शंस। You can choose any. You can choose any of. You can choose Any of them. any of them. If you had prepared well, You would have paid. you would have fared well. 26 की बात करते हैं। Where there is a will, Here is a game. there is a way. It is getting dark. Should I get turning the lights for? I must turn. Must I turn on the light? Can must क्यों आएगा भाई? जबरदस्ती थोड़ी है, वो पूछ रहा है ना। तो can I turn on the light? Once I met a traveler. Said he had been to an Asian place. हाँ बिल्कुल, एक बार एक ट्रैवलर को मिला तो वो आएगा भाई। अननोन है, ज्यादा जानता नहीं इस बंदे को। वो said he had been to an Asian place. Man is the greatest truth of all. There is something beyond. क्या? B. There is something beyond the There is nothing beyond him. If your life is circumscribed by habits alone, You were merely an intimidating. कर्म नहीं आएगा भाई। you were क्यों आएगा? You are merely. You are merely an initiative machine. करंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर तुम्हारी लाइफ हैबिट से ही डिफाइन होती है तो सिर्फ तुम एक इनिशिएटिव मशीन हो, तुम मशीन थे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, फोकस करेंगे सब लोग। बताइए भाई 31st का क्या होगा, किससे स्टार्टिंग होगी? सर क्यों You- है सर? क्यों से सर? क्यों से? क्यों से स्टार्टिंग होगी। ऑप्शन कौन सा होगा भाई हमारे पास? Rubidium is used in the filaments of photoelectric cells which convert light energy into electrical energy. ठीक लग रहा है। Rubidium is used photoelectric cell, B वाला तो नहीं होगा। S से starting photoelectric cells which convert light energy into electrical energy. Rubidium is used in the filaments of नहीं, and ये भी नहीं होगा। ऑप्शन है आंसर। B पे आते हैं 30 सेकंड पे, बताइए। D. ये urged, मतलब इससे P से P से E से तो ऑप्शन है इसका P से तो किसे होगा? D वाला D for dog. D वाला नहीं, D. B, अच्छा। This is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he asked so many to get involved. देखो Q और S का तो एक पेयर बन रहा है ना। Q और S का तो एक लाइकली पेयर बन रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को देखें
तो दिस इज द फाइनल वर्ड ऑफ एन एजुकेशनल फिलोसफर ऑन अ वर्ल्ड, ये तो नहीं होगा। ऑन अ वर्ल्ड इन विच ही आल्सो मैनी टू गेट इन्वॉल्व, वो हैज लेफ्ट हिज मार्क नहीं होगा। एंड वो हैज लेफ्ट हिज मार्क ही आज नहीं, भाई डी ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा। 33 की बात कर लेते हैं। या तो स्टार्टिंग और RQSP आर से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हाइल यू मीन अनदर वेयर यू सर तीन ऑप्शन और अपोजिट, ये तो नहीं होगा। क्यू से तो नहीं होगा भाई, वेयर यू से वन थिंग सर सी है। अनदर, एक सेकेंड, और द अपोजिट नहीं। सी हमारा हो सकता है आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर यू से वन थिंग व्हाइल यू मीन अनदर और द अपोजिट। पी से तो स्टार्टिंग हमारी होगी। 34 डी सर, डी से, आर से स्टार्ट करते हैं। The discovery of petroleum in the Middle East has changed the lifestyle of the people across the world, हो सकता है ये। ए से देखेंगे तो the discovery of petroleum, the lifestyle of people नहीं कनेक्ट कर रहा। In the Middle East has changed नहीं स्टार्ट हो रहा। And the lifestyle of the people, the discovery नहीं हो रहा भाई, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 35 की बात करना था ये सर, द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग A camel uses fat, मतलब अगर ये ऑप्शन को देखें, a camel uses fat as a source of energy during its long journey in the desert, ठीक लग रहा है। हाँ लेकिन दूसरों को भी देख लेते हैं। कैमल uses, माइक ऑफ कर रहा है, तुम्हारी माइक से आवाज रिवर्बरेट हो रही है बार बार। द कैमल uses fat in the desert during its long journey as a source of energy, sorry, the camel uses fat in the desert during its, नहीं, ये तो नहीं होगा। In the desert during its long journey, ये भी नहीं होगा। And during its long journey as a source of energy, भाई ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा यही होगा, QPSR। इसके बाद देख लेते हैं 36 को, बताइए। यहाँ भी पता चल रहा है कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, बिगिनिंग से ही बिगिनिंग हो रही है। QP बिगनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइन सपोर्ट पी वाला। In the concluding lines or the event described in the story must support the main part, काफी हद तक सेंस बना रहा है। The beginning and the conclude, सर, बी होना चाहिए। एक मिनट रुक जाए पर बोल ही तो दिया करो। The beginning and the concluding lines must support the main part or the events described in the story, ये भी सेंस बना रहा है ना। आर से स्टार्टिंग देखेंगे तो आर से तो नहीं होगी, एस से देखेंगे तो नहीं होगी। फिर से एक बार ए और बी को देख लेते हैं। देखो ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो, जल्दबाजी करोगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। शांत तरीके से सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया करो। बड़ी बस मत करो कि भाई पहली बार में जो देख रहा है उसको सही कर दिया। मैंने आपको हमेशा बताया कि चारों ऑप्शंस को बारी बारी से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है। 1 घंटे में तकरीबन काफी हद तक पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग 2 या 3 चीजें बचती हैं, और वो क्वेश्चंस बचते हैं जिनके बारे में हम डाउटफुल होते हैं, है ना। कुछ ऐसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह। 3 मेजर चीजें छूटती हैं आपकी 1 घंटे के बाद में। पहला रहता है पैराजम्बल वर्ड्स, जो भी हम कर रहे हैं। दूसरा रहते हैं आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो भी हम करेंगे, और पैराग्राफ। ये 3 मेजर चीजें होती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है ना। बाकी सारी चीजों में तो आपको आता है तो आप तुरंत उस पर टिक कर देते हैं, ठीक। तो चलिए फिर से देखेंगे QSRP को। द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स और द इवेंट्स, है ना, डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट। और दूसरा देखेंगे द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स और मस्ट सपोर्ट, हाँ, लाइन्स को सपोर्ट करना चाहिए मेन पार्ट को, और द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। मेरे हिसाब से तो बी ज्यादा सही है, आप लोग बताइए। बी सर, बी 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 क्या, बी है ना, ठीक। यस सर। ना 37 बताइए। सर क्यू से स्टार्टिंग होगी। क्यू से स्टार्टिंग होगी। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, आर ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम इज बीइंग सिस्टमैटिकली डैमेज्ड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स, काफी ठीक लग रहा है। पी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, आर से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स नहीं, और डी से भी एस से भी स्टार्टिंग हमारी नहीं होगी। तो इस चीज का ऑप्शन 38 की तरफ आ जाते हैं, बताइए। एस से एस से, the television screen is challenging the film industry due to
इट्स रेडी अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू द व्यूअर। दूसरा आ जाएगा द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग, नियरनेस टू द व्यूअर सी तो नहीं आएगा। आर से स्टार्टिंग इट्स रेडी अवेलेबिलिटी एंड द टेलीविजन स्क्रीन नहीं आएगा। क्यू से भी स्टार्टिंग नियरनेस टू द व्यूअर्स। बी सर, बी। 39 सर researchers say that ये researchers say that they built an artificial intelligence system that like humans makes ethical judgment। ठीक लग रहा है। दूसरा वो देखेंगे अगर हम, तो researchers say that make ethical judgment से तो नहीं होगा। they built an artificial intelligence system that like humans makes ethical judgment, researchers say that नहीं। and they built an artificial intelligence system makes ethical judgment that like humans नहीं, यही आएगा वही हमारा। ठीक है। he is a fool, सॉरी 40th को बताइए। बोलिए। सर आर और पी होना चाहिए आर और पी, सर साथ में। इट इज नॉट दैट। कोई एक तो बताओ। सर आर और पी तो साथ में आएंगे। की और एस में कंफ्यूजन। आप पी साथ में नहीं ऐसा बोल रहे हैं, जिन्होंने तुम आर एफ पी में से बोल रहे हैं। ठीक है। और पी आर पी एस पी, it is not that he is a fool, it is that he does not think other thing intelligently। ये हो सकता है। he is a fool, it is that he does not think नहीं आएगा। others think intelligently, it is not that ये भी नहीं आएगा। and he does not think, it is not that नहीं हुई। हाँ ठीक है, भी है। ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग 4 पेपर्स कर चुके हैं। 4 पेपर्स में अराउंड हम लोग 40 समथिंग पैराजम्बल ये सेंटेंसेस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को इतना आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ पर हमारा सेंटेंस कंक्लूड किया जाता है, उसकी बेसिक कनेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि नहीं। यस सर। मेजर काम यहाँ पर क्या होता है? मेजर काम यहाँ पर होता है कि भाई हमको स्टार्टिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट आपका फ्रेज होता है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं होता। तो कई बार हमें आइडिया नहीं लग पाता कि एग्जैक्टली एंडिंग कहाँ पे हो रही है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसका स्टार्टिंग जो है वो कहाँ पर हो रही है ना। तो वो हमें पता चलना चाहिए। वो अगर हम कर लेते हैं तो फिर चीज़ें आसान हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लॉज कंपोजिशन पे आ जाते हैं। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। बैंकिंग इज an essential building block। नहीं and anything आएगा भाई। And ओके An essential building block to reach greater prosperity and help build a better system. where, WHERE। Where? नहीं सर, वेयर तो मतलब सर दो चीज आ सकती है ना। वेयर तो मतलब बात तो की जा रही है जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, विच फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ी आएगा, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं आएगा। सिस्टम की बात सर ये एक मिनट सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे वेयर और वेयर का डिफरेंस क्या है। वेयर मतलब कि क्वेश्चन पूछना, और वेयर यानी कि किसी स्थान विशेष की लोकेशन का बताना कि उस जगह पे लोकेटेड है। मतलब वो दोनों इसमें इसका मीन दोनों में उसका आ जाता है, लेकिन कंटेक्चुअल मीनिंग की बात होती है। यहाँ पर स्पेसिफिक है, सिंपल, कि हम यहाँ पर किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हम किसी स्थान विशेष की बात कर रहे हैं। हाँ वही तो मतलब तो तब वेयर तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो स्थान विशेष के लिए आता है ना। क्वेश्चन के लिए फिर कौन सा वाला वेयर आता है? वेरन के लिए भी यही आता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और वहाँ साफ साफ पता चलता है कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आया समझ? हाँ सर, गॉट इट। ठीक है। A better system where financial services can create a path out of poverty. However, big traditional banks often exclude low-income population बाय रिक्वायरमेंट्स और बाय by requirements। by requirements or by using historically discriminatory practices that keep
these big These these low income customers away away from formal finance. Modern lifestyles are predicated on on debt. on debt, है ना, debt पर टिकी हुई है. If you have a stable and reliable income, have a bank account with access to range to a range of modern financial products, you can manage your debt efficiently. This means This is what the entire this is see is what the entire financial system is for, but debt becomes a Become- lifetime. becomes a lifetime trap if you don't have easy access to these These financial these- products. these financial products. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं propositions और determinants की तरफ. Rahul must have received the dues by now. Why? By now. Rahul must have received the dues By now. by now. How many students have come Along with you. Along with you. along with you for the program? You need to make others feel that you are second to none. Scholars are often caught on the horns of Dilemma. a dilemma. या किसी specific dilemma की बात नहीं हो रही है तो a dilemma आएगा. I mean, A few. अब आएगा भाई. A few count कर सकते हैं, quantity नहीं है. A few incidents of violence, the voting went on where the dash university is a place for A university. university. a university. Okay? Specific नहीं है तो आएगा. Education is a manifestation of A perfection. the perfection. The perfection की बात की जा रही है जो कि definitive है. तो भाई the perfection already in man. Entry into the building. into the building. Motion में है ना. तो entry into the building was restricted due to COVID-19 pandemic. Ranjit has been elected as The leader. leader. the leader of the group in the house. Specific है. House के leader की बात की जा रही है. System performance was By the rated by the drop zone formality. at the हाँ. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस. अगेन ये थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग आ जाता है. क्या बोलते हैं, सॉरी. सेंटेंस वन है. A license who wants to surrender his license, a licensee who wants to surrender his license shall apply in the form X to the licensing officer. The licensee who has surrendered his license should be allowed to sell the antiquities declared to another licensee or a recognized museum in India. ठीक है. तो भाई स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो? The application shall be accompanied by a declaration of stock from देखो यहाँ पर आप देखोगे तो भाई पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? A licensee who wants to surrender his license shall apply in the form X to the licensing officer, है ना? अब एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है S वाले सेंटेंस. The application shall be accompanied by a declaration of stock in form FIP. अब S वाले तो भाई हमारे पास तीन ऑप्शन आ जा रहे हैं, है ना? अब इसके बाद R आएगा कि Q आएगा? सर क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि पहले सेंटेंस को देखिए, है ना? लाइसेंसिंग ऑफिसर को दिया जा रहा है और एप्लीकेशन को इसमें एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि अब लाइसेंसिंग ऑफिसर की बात की जाएगी. इफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ही मे एक्सेप्ट द ऑर्डर. अब आर आएगा कि पी आएगा? सर पे आना चाहिए. पी आना चाहिए. क्यों? सर वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि उसके लिए कोई लाइसेंस कि अगर आप टर्मिनेट करवाना चाहते हो. पी तो नहीं आएगा. नहीं सर आ रहेगा बाद में. आर आना चाहिए ना, क्योंकि हम लाइसेंस के टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं. तो लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस. ये प्रोसेस पूरा हो गया. उसके बाद उसके रिपरकशंस की बात की जाएगी कि दिस शैल नॉट एंटाइटल द लाइसेंसी टू एनी कंपनसेशन बाय वे ऑफ लाइसेंस फी इन एनी फॉर्म, है ना? और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका द लाइसेंसी हु हैज सरेंडर्ड हिज लाइसेंस
shall be allowed to sell the entities declared to another licensee or a recognized museum in India. तो हमारा ऑर्डर क्या था? F के बाद में Q था, Q के बाद में R था, फिर P था. S Q R B. ऑप्शन C रहे. 62 पे आते हैं. Haryana has achieved the second rank among states in logistics is across different states. Leads 2021 report. Last sentence आएगा Leads 2021 framework evaluated states, union territories of 31 indicators including 17 perceptions and 4 objective based indicators. बताइए. एस से स्टार्ट होगी चाहिए. क्या? एस. क्यों से स्टार्ट होगा? क्यों? देखो भाई, उनके पहले स्टेटमेंट में हरियाणा की बात की है, तो मेरे ख्याल से हरियाणा को पहले तरजीह मिलनी चाहिए. नहीं, हाँ सर, क्यों से. क्योंकि हरियाणा ने सेकंड रैंक अचीव तो किया बात है, तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स में हरियाणा की इस परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन ज्यादा बेटर तरीके से करा सर, जाए, क्यों से स्टार्ट है ना. हो. और एक और चीज आ जाती है, पी से स्टार्टिंग. पहली बात तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहली बात तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, और अगर ऑप्शन में होता तो भी पी से स्टार्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका नेक्स्ट सेंटेंस में ही नाउन को रिपीट कर दिया गया, जबकि एक प्रॉपर पैराग्राफ में नाउन को अगले सेंटेंस में रिपीट नहीं किया जाएगा, उसकी जगह प्रोनाउन आ जाएगा, है ना. तो जैसे क्यों से बात करें हम, the state has taken a lead from the 6th overall position in the previous evaluation 2019. This makes Haryana a top performer in the northern cluster of landlocked states. क्यों के बाद पी तो नहीं आ रहा भाई. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. क्यों के बाद पी तो नहीं आ रहा. इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं. The state has taken a lead from the 6th overall position in the previous evaluation 2019. आर आना चाहिए. इसमें R, हाँ R ही आएगा. The improvement in ranking reflects focus initiatives by the state in improving the infrastructure. Then हमारा P आएगा. This makes Haryana a top performer in the northern cluster of landlocked states. फिर आएगा S. The report aims to evaluate and rank states and union territories on the efficiency of their logistics and initiative taken and leads 2021 framework blah blah blah. हमारा ऑप्शन क्या था भाई? हमारा Q R P है. 63 पर आ जाते हैं भाई. The wind power is an inexhaustible source of clean energy. Last option आएगा आपका S. Examples 13% of Denmark's power and more than 20% of power in Netherlands, Spain and Germany supplied by wind. S6 से आप कनेक्ट कर सकते हैं, S1 से भी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं. बताइए कौन सा आएगा? सर एस से होनी चाहिए स्टार्टिंग. S से. One expert calls wind generation the fastest growing electricity producing technology in the world. Much of the growth was in Europe, where most of the world's 17,000 megawatts of wind power is generated. During the last decade, power production from the wind increased from more than 25%, although the cost of electrical energy. नहीं, S से तो नहीं लगा. सर एंडिंग तो आर से होगी. एंडिंग आर से होगी. हाँ, एंडिंग आर से ही होगी भाई, बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारे यूरोप की बात की गई है, फिर यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बताया गया है, तो आर की एंडिंग वाला तो एक ही लग रहा है आपका सी ऑप्शन. इसको देख लेते हैं. Although the cost of electrical energy produced by the wind depends on favorable sites for the location of wind turbines, wind energy is already cost competitive with power produced from the fossil fuels. बिल्कुल सही. ऐसा के बाद तो भाई क्यों हमारा फिट हो रहा है, बिल्कुल, है ना. विंड पावर इन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है. फिर बताया है कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है. फिर आ जाएगा एस. One expert calls wind generation the fastest growing electricity producing technology in the world. फिर आ जाएगा P. During the last decade, power production from the wind increased more than 25%. फिर आ जाएगा much of the growth was in Europe, where most of the world's 17,000 megawatts of wind power is generated. सबसे लास्ट में as example, 13% of Denmark's power and more than 20% of power in the Netherlands, Spain and Germany supplied by the state. 64. Education is believed is inseparable from our societal aspirations. Last वाला आएगा. But for a modern technical mind, this preoccupation with supreme spiritual knowledge may not hold such fascination. सर आर से. आर से होगा, लग तो रहा है भाई. एस्पिरेशंस की बात की गई है ना. R1 ऑप्शन भाई पहला तो ए है. As this aspiration world's views undergo a process of transformation with the changing time, so does the meaning for education. Education, as would many argue, was for realization of ultimate and the absolute. It was to overcome the finiteness of existence, all earthly temptations and desires. In the ancient times, for example, there was a distinctive spiritual meaning
associated with education, but for a modern technical mind, his preoccupation with supreme spiritual knowledge may not hold such fascination. काफी सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। S1 के बाद में आपका R आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, एस्पिरेशंस की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद में R के बाद में P के साथ हमारा जो है S अच्छे खासे तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है। एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड किया है। तो P के बाद में डायरेक्टली हमारा S आ रहा है और S के बाद में Q और S6 जो हमारे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एशियन टाइम्स की बात की गई है और S6 में आपके मॉडर्न या टेक्निकल माइंड की बात की गई। कोई और कोई ऑप्शन सजेस्ट करना चाहेगा जिसको ठीक लग रहा हो? नो सर। 66 पे आ जाते हैं। He resisted colonial education not just because it came from the West. Besides, with this kind of education, one could not appreciate the dignity of manual labor. तो भाई बताइए स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सर ये स्टार्टिंग किससे? पी सर, पी पीछे। एसेंशियली Essentially, he disliked its inherent elitism, its irrelevance as far as the needs of India's rural masses were concerned. पी के बाद क्या है? आर या क्यू? सर क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो कंसर्न दिखाना चाह रहे हैं, तो कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। For example, it was difficult for him to accept English as the medium of instruction because he felt that it has created a permanent path between the highly educated few and the uneducated many. Moreover, with this profound pedagogic sensitivity, he could see the damaging effect of colonial education. He also felt that English made one a stranger in one's own land. Besides, with this kind of education, one would not appreciate the dignity of manual labor. नहीं आगे सूट नहीं कर रहा, फिट नहीं बैठ रहा पूरी तरीके से। डी वाला, ए वाला सर डी 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 स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग नहीं होगी भाई। स्टार्टिंग किसकी पी से होनी है? तीसरा हमने कौन सा ऑप्शन देखा था अभी? P3 देखा था ना, PR को देख लेते हैं। Essentially, he disliked its inherent elitism, its relevance as far as the needs of India's rural masses was concerned. है ना? अब रूरल मासेस को उसने कनेक्ट किया है किससे? PR से। Moreover, with this profound pedagogic sensitivity, he could see the damaging effect of colonial education. For example, it was difficult for him to accept English as the medium of instruction because he felt that it has created a permanent path between the highly educated few and the uneducated many. He also felt that English made one a stranger in one's own land. Besides, with this kind of education, one could not appreciate the dignity of manual labor. एस और एस सिक्स तो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यू के बाद आपका एस कर रहा है। ऑप्शन ए को ही देखेंगे हम लोग। पी के बाद में आर एंड देन क्यू एस। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। कोई ऑप्शन को सजेस्ट करना चाहेगा? नो सर, बट एक बार ये पेडागॉगिक का मतलब बताओ। पेडागोगिक, पेडागोगिक वर्ड नहीं सुना आपने? नहीं सर। यार ये वर्ड तो बहुत सारे कॉमन है, इतने सारे कॉमन वर्ड्स हैं, आपको इन सारे वर्ड्स को नहीं सुनते हैं, मुझे थोड़ा वो लगता है। पेडागोजी का मतलब होता है जब मतलब एक तरीके की पढ़ाई होती है, मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाने का मेथड होता है। मतलब पढ़ाई मतलब पढ़ाने का मेथड होता है ना। किसी के पढ़ाने का तरीका कुछ होता है, किसी के पढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो इसको पेडागोजी बोला जाता है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स। जैसे मेरा टीचिंग मेथड कुछ और होता है, ये मेरी पेडागोजी है, किसी और को कुछ और है, तो दैट काइंड ऑफ इसको इसमें यूज किया जाता है। 66 आ जाते हैं। A corpus is an evident source of samples of English language. It is not only the previously explained meaning of the word that we might want a sample to exemplify, however, but also its collocational tendency. Corpus के बारे में बोला गया है, क्या फॉलो करे? सैंपल्स कोई सर? आर। सर आर से स्टार्ट हो, RPSQ एक ही ऑप्शन। आर से स्टार्ट होगा? नहीं, इसमें एक्जैक्टली वाली चीज फॉलो नहीं हो रही वैसे। A corpus is an evident source of samples of English, samples of the language
isolated from their natural context of use will not normally exemplify word meanings but will simply show one instance of word's actual occurrence. नहीं, आर मेरे ख्याल से S6 से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है ना? सर फिर ए और डी आए उस एंड में आर है। देखो, हम कॉर्पस की बात कर रहे हैं ना सबसे पहले, और अब कॉर्पस इज एन एविडेंट सोर्स ऑफ सैंपल्स ऑफ इंग्लिश यूसेज। क्यों से स्टार्ट करें? तो इफ दे आर टू फंक्शन एज एग्जांपल्स, हाउएवर व्हेन दी, हम सैंपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? इफ दे आर टू फंक्शन एज एग्जांपल, हाउएवर देन वी नीड टू आस्क जस्ट व्हाट इट इज दे आर इंटेंडेड टू बी एग्जांपल्स। If this is to be of meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of corpus at random. यानी कि Q के बाद P आपको फॉलो तो कर रहा है, QP का पेयर मुझे कहीं और नहीं मिल रहा है, QP के बाद में S आएगा. This is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out. Samples of the languages isolated from their natural context of use will not normally exemplify word meanings, but will simply show one instance of the word's actual occurrence. It is not only the previously explained meaning of the word that we might want a sample to exemplify, however, but also its collocational tendencies. यानी कि S6 और R भी कनेक्ट कर रहे हैं. R तो भाई हमारा दो ऑप्शंस में ही आ रहा है, और हम किसको परस्यू कर रहे थे? हम कर रहे थे Q और P वाले को, है ना? तो Q के बाद में P आएगा और लास्ट में R आएगा. ऑप्शन A आ रहा फिट बैठ रहा है. कोई और किसी ऑप्शन को चैलेंज करना चाहेगा? बोलिए. हाँ या ना? यस सर. अरे चैलेंज करना चाहोगे तो बताओ ना फिर कौन सा. सर वेल अरे फिट. कोई और ऑप्शन सजेस्ट करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? इतना लेट के रिस्पॉन्ड करते हो यार तुम लोग. सर बेस्ट फिटेड ये लग रहा है. हाँ तो बोलो ना तुरंत, इसमें इतना लेट क्यों कर रहे हो? Historians have often explained religious and social reform in India in the 19th century as a result of the Western impact upon the minds of men. है ना? पहला ही हो गया. सेकंड लास्ट आ जाता है. Each of these vernacular using reformers derives his argument from within his own tradition. यानी कि S6 को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. S1 के कंटेक्स्ट से पहले देख लीजिए कौन सा आएगा भाई ऑप्शन आपका. Q, R और S से स्टार्टिंग बता रहे हैं, P से तो कोई स्टार्टिंग होगी नहीं. बताइए. सर क्यू से लग रही है स्टार्टिंग. Q से पक्का? सर अभी तक The equation of westernization and modernization has given way to a search for the indigenous source of social changes. Recognizing the modernity of the tradition is one thing, however, नहीं वही कनेक्ट नहीं कर रहा. Q और R तो Q और R ही कनेक्ट नहीं कर रहे. सर एस को देखता है सर. Others have recognized that this was entirely too simple an explanation for the intellectual and social changes that took place in India and other places that fell under the foreign colonial rule. S1 के बाद में S जो है आपका इसलिए कनेक्ट कर रहा है कि हिस्टोरियंस ने ऑफन ही एक्सप्लेन किया है कि रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म जो इंडिया में 19th सेंचुरी में हुए हैं वो हुए हैं वेस्टर्न इम्पैक्ट की वजह से, जो कि इंसानों के दिमाग पर हुआ है. उसके बाद में अदर्स बोला गया, यानी कि जो दूसरे लोग हैं, तो यहाँ पर ही आपका फिट हो रहा है कि others have recognized that this was entirely too simple an explanation for the intellectual and social changes that took place in India and other places that fell under the foreign colonial rule. यानी कि काफी हद तक मुझे तो कनेक्ट कर रहा है एस वाला. अब एस के बाद में क्या आएगा? सी या डी? क्यों आएगा कि पी आएगा? सर पी लास्ट में आना चाहिए, वो रिफॉर्म और वर्नाकुलर कनेक्ट. हाँ पी लास्ट में आना चाहिए. सी को ही देखता. सी को देखेंगे. The equation of westernization and modernization has given way to search for the indigenous source of social changes. Recognizing the modernity of tradition is one thing, however, whereas understanding the intellectual processes
that produce indigenously generated change is another. With that purpose, we seek to analyze the thoughts and activities of individuals who were both religious reformers and vernacular publicists. Each of these vernacular using reformers derives his argument from within his own tradition. है ना? यानी कि पी सबसे लास्ट में था. पी के ऑप्शन की तरफ से भी अगर हम देखते तो हमारे पास ए ऑप्शन आ रहा था और सी ऑप्शन में नहीं. तो आप एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद हमें ऐसे पता चल जाता है ना? कैसे कंबाइन करते हैं कि S1 के बाद में S आ रहा है और सबसे लास्ट में आपका P आ रहा है. तो स्टार्टिंग S से और एंडिंग P से. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ये लग रहा है. इसको देख लेंगे, फिर बाकी को है उसको भी हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, 68 पे आ जाते हैं. बताइए भाई. Sorry. The country has experienced unprecedented economic development since the adoption of the new economic policy in the year 1999. If the country dreams of a much larger economy today, much of the optimism is due to the policy changes that took place in the year 1999. बताइए भाई. सर एस है ना? सर एस ऐसे स्टार्ट होगा सर. क्यों से भी तो हो सकते हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई है, तो इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द newly announced policy, there was apprehension in the minds of the people. Faced with a critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the नहीं Q और S फिट नहीं हो रहा है ना? S से कौन सा, A या C? सर एस के बाद क्यू आना चाहिए. उसके बाद है क्यों. चलो. Faced with a critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the union budget presented in the year 1999. In the immediate aftermath of the newly announced policy, there was apprehension in the minds of the people. Within a few years, however, the beneficial impact of the newly announced policy became manifest through higher GDP and a thriving economy. The middle classes have been the greatest beneficiary of the policy, who today enjoy far greater levels of income than their previous generation. हम कौन सा फॉलो कर रहे थे? S के बाद Q, Q के बाद सर ऑप्शन ए. R के बाद उसके बाद में if the country dreams of a much larger economy today, much of the optimism is due to the policy changes that took place in the year 1999. ठीक लग रहा है वैसे तो. R तो होगा ही नहीं, है ना? नहीं होगा. और Q तो हमारा बिल्कुल नहीं है. S P को अगर देखें तो मिडिल क्लास का ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी विद इन ऑफ यूएस नहीं, ये भी नहीं. ऑप्शन ए ही हमारा होगा. सेकंड लास्ट पे आते हैं. बताइए. The Indian cooperative movement is probably one of the largest, strongest, and the oldest in the world, with widespread special coverage, diversified business activities, and ample success story. Cooperatives have been organized in areas like credit, marketing, distribution, dairy development, industry, sugar, and so on. बताइए. सर एस से होनी चाहिए स्टार्टिंग. किस से? S से. Ever since the officially sponsored Act of 1904, the movement has passed through a number of phases. It is structured around the Rochdale principles and Raffleson model in wake of the miseries of peasantry. It is termed as the economic miracle of the last century. It has celebrated. नहीं, ये तो नहीं हो रहा फिर यार. H से तो स्टार्टिंग नहीं. R से हो सकती है. It is termed as the economic miracle of the last century. It has celebrated. नहीं, R से भी नहीं होगी. R और P हमारे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. Q से देखें तो सर क्यू बेटर फिट लग रहा है. Q से हो जाएगा. लग रहा है. It is structured around the Rochdale principles and Raffleson model in wake of miseries of peasantry. It is termed as the economic miracle of the last century. It has celebrated. नहीं, again R और P वही यहाँ पे भी फिट नहीं कर रहे हैं. ऑप्शन ए की बस इसी को देखेंगे. इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली. ठीक है. एक सेकंड, कौन सा ऑप्शन देख रहे थे हम? सर पी क्यू आर एस. सी वाला. सी वाला भूल जाता हूँ यार बार बार. ठीक है. It is structured around the Rochdale principles and Raffleson model in wake of miseries of the peasantry. It is termed as the economic miracle of the last century. Ever since the officially sponsored Act of 1904, the movement has passed through a number of phases. ठीक है. Option C it is. Last option. Degenerative and man-made disease, or rather non-communicable diseases, mark epidemiological transition in the contemporary world. अब epidemiological transmission की बात की गई है तो उसको फॉलो कहाँ किया जा रहा है?
पी में पी में किया जा रहा है, एस में भी तो किया जा रहा है, यस सर, एस में भी हो रहा है ना? लेकिन एस सर क्यू एंड में नहीं आना। है थ्योरी एस में। हाँ, एस इतना ज्यादा नहीं लग रहा भाई। पहले फिर पी को देख लेते हैं। पी वाले दो ऑप्शन है, पी एस और पी क्यू। स्कॉलर्स reiterate that epidemiological transition and structural changes in the disease pattern are inevitable. ठीक है। Omran's epidemiological transition theory 1971 portrayed a clear picture of the changing pattern of disease prevalent all over the world. PS के बाद ही argued that S और R तो साथ में आएगा, है ना? S और R हमारा साथ में आना चाहिए। He argued that disease pattern is shifting from the predominance of infectious and parasitic disease to chronic and man-made disease. उसके बाद आएगा Q. This transition is the result of rapid increments in urbanization and industrialization. ये भी ठीक लग रहा है। This transition has led to the rise of living standards in general, whereby people enjoy a sedentary lifestyle with good socio-economic profile. यानी कि हम देख रहे थे PSRQ4. PSR की ठीक लग रहा है। PQRS तो नहीं आएगा। PQRS आ सकता है क्या? नहीं, S और R का फॉलो करेंगे ना। यस सर। PSRQ रहेगा। कोई और किसी को सजेस्ट करना चाहेगा ऑप्शन को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए हमारे आते हैं वर्ड मीनिंग्स पे। LEP NI5 और NI5 बोला जाता है इसको। सर ए, the accused was acquitted because he provided an alibi. The accused was acquitted because he provided an alibi. ठीक लग रहा है। Was acquitted because his alibi was not accepted. नहीं, accept नहीं किया जाएगा तो फिर उसको छोड़ा कैसे जाएगा? Accused was acquitted because his alibi was false. नहीं, acquitted का मतलब क्या होता है? सर बरी करना। बरी कर देना, है ना? तो उसको बरी तभी किया जाएगा जब वो एक सब्सटेंशियल एलिबी प्रोड्यूस करेगा। अब एलिबी का मतलब क्या है? सर वो अपना स्टेटमेंट देना कि सर कहाँ वो बंदा जो present बंदा था, वाउच कर सके कि भाई ये उस टाइम पे यहाँ प्रेजेंट था, हाँ वही। है ना? हाँ। हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा। कंटिन्यूसली। डी सर, the water was flowing from the leaking tap continuously. The waves lapped upon the shores continuously. कंटिन्यूसली नहीं होगा, ये आपका पीरियडिकली हो जाएगा या रेगुलरली हो जाएगा। द फेलोज एट द एकेडमी फॉलो देयर एक्सरसाइज रूटीन कंटिन्यूसली, ये भी आपका रेगुलरली हो जाएगा। द जाइंट पिस्टन एट द ऑयल रिंग हैमर द ग्राउंड कंटिन्यूसली नहीं होगा, ये भी आपका पीरियडिकली होगा, मतलब टाइम टू टाइम। टैप वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली होगा, मतलब लगातार। ठीक है। एलिसिट, The demand. डिमांड, Yes sir. the demand for further information did not elicit an Agree. enthusiastic response. Elicit का मतलब क्या होता है? Sir to bring out something. निकलवाना, है ना, या उगल। हाँ निकलवाना। ठीक है, तो ये होगा भाई हमारा। अब ये तो भाई आपके illicit हो जाते हैं, LELLICIT, है ना, illegal. Illicit Yes. strikes between them but discovered by chance, ये भी illicit होगा। And the illicit reasons stated were found to be insufficient. Illicit नहीं, यहाँ पर explicit हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्लियर। 74 आ जाता है क्लाइमैक्टिक। बी। D. The climactic changes preceding environmental disasters are predicted to unfold soon. Climactic का मतलब क्या हो? सर क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमैक्स वर्ड सुना ना, क्लाइमैक्स। Yes sir, climax मूवी का climax. ये क्लाइमैक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का होना जिसकी वजह से एक ग्रैंड या ड्रामेटिक एंडिंग होती है ना? तो क्लाइमैक्टिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू कैटाक्लास्मिक वेदर चेंजेस, नहीं। क्लाइमेटिक या तो क्लाइमेटिक होना चाहिए। द क्लाइमैक्टिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट विल इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड, नहीं, ये आपका क्लाइमेटिक यहाँ पे भी होना चाहिए। एंड द क्लाइमैक्टिक
आउटकम्स ऑफ रिस्ट्रेंट सस्टेनेबिलिटी और पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्लाइमेटिक होना चाहिए। द क्लाइमेटिक चेंजेस प्रिसाइजिंग इन्वायरमेंटल डिजास्टर आर प्रेडिक्टेड टू अनफोल्ड सून, है ना। यानी कि जो एंडिंग चेंजेस है आपके वो आप आने वाले हैं, क्लाइमैक्स होने वाला। अफेक्ट सर बी। B, for the new scheme to take effect, certain conditions have to be met. नहीं ये तो नहीं हुआ। अच्छा, अफेक्ट का मतलब, अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर क्या है, ये तो मैंने आपको बताया था। अफेक्ट क्या होता है? तो वो होता है जिस किसी सर, execution से जब कोई इस रिजल्ट आता है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांस की वजह से कोई दिक्कत होती है, कुछ चेंज आता है ना, तो वो आपका अफेक्ट होता है। और इफेक्ट क्या होता है? सर खुद में चेंज होता है जो। इंटरनल चेंजेस हो रहा। यस सर। नहीं नहीं, इफेक्ट आपका वो होता है ना कि किसी चीज की वजह से चेंज हो रहा है ना। यस सर। और अफेक्ट जो आपका होता है उसका मतलब होता है जब आप किसी से कुछ किसी के जरिए किसी में चेंज आना, है ना। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज से result चेंज का आना, change और होता है। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज से कोई चेंज करवाना, है ना। सो द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि डाइट की वजह से इफेक्ट आएगा। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक इफेक्ट सर्टेन कंडीशन हैव टू बी मेट, है ना। सर्टेन कंडीशंस को इफेक्ट आपका है, यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस करेंगे। इन इफेक्ट वी आर बैक टू वेयर वी वर बिफोर, अगेन सेम चीज आ जाएगी। द चेंज सर्कमस्टांसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट है, यहाँ पर आपका अफेक्ट आएगा प्रॉपरली, यानी कि जो चेंज सर्कमस्टांसेस है वो उसके अंदर क्या करेंगे, चेंजेस ला सकते हैं, मतलब वो कुछ किसी ना किसी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करे, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन डी। क्या इफेक्ट डिस्क्रीट वाला होगा क्या? सर जो ए वाला इफेक्ट को एक्सटर्नल से होगा, चेंज आएगा जो। The new diet did not seem to have any effect on her नहीं, एक्सटर्नल से क्या होगा, किसी चीज की वजह से कुछ होना, मतलब एक्सटर्नल ही है, किसी चीज की वजह से कुछ होना तो इफेक्ट आएगा ना इसमें। तो यस सर। डाइट की वजह से उसकी हेल्थ में चेंज हो रहा है ना, तो किसी चीज की वजह से कोई चेंज आ रहा है। यस सर, ओके सर। ठीक है, आगे आ जाते हैं डिस्क्रीट। The discrete series had many intervening gaps. मतलब तो बताओ पहले डिस्क्रीट का। देखो पहला हम देखेंगे आप, द मैनेजर वाज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज और द न्यू क्लाइंट, ये वर्ड यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो आ जाता है आपका डिस्क्रीट, DISCREET, यानी कि चुपके से, है ना, सीक्रेसी में। यहाँ पर नहीं फिट होगा। द डिस्क्रीट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अगेन ये भी नहीं होगा। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मेनी इंटरवेनिंग गैप्स, ये हो सकता है क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली या फिर सेपरेशन, तो सेपरेटेड सीरीज हैड मेनी इंटरवेनिंग गैप्स हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट व्हाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटेरियल, अगेन यहाँ पर डिस्क्रीट आएगा, सीक्रेसी वाला ऑप्शन सी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वर्ड मीनिंग का भी पार्ट आ जाता है, प्लस ये इसमें होमोनिम्स वाला एंगल ज्यादा आ रहा है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड जो है वो आपके डाल दिए गए हैं और फिर आपको उनका मीनिंग बताना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट्स, IT के बाद हाइफन है, फिर एस है। ठीक है, आगे पीछे वाले कॉमास को मत मानिए, वो सेंटेंस उसको वर्ड को डिनोट करने के लिए। बताइए भाई डी। क्या है वो? डी। CA सर, इट इज इम्पेरेटिव, ऐसा पढ़ेंगे तो। कौन सा? सी सी। सी। यस सर। सी इट्स सर ऑप्शन डी। नेचर टू रैपिड चेंजेस, तो इट्स नेचर को नहीं, ए वाले में तो इट्स नेचर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इट्स का मतलब यहाँ पर आएगा किसी चीज से रिलेटेड, है ना। पोजेशन दिखा रहा है आपको, हाइफन है यहाँ पर, एपोस्ट्रोफ ऐसे है यहाँ पर। तो व्हाट इज इट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस दैट हैज इम्प्रेस्ड यू, ये भी नहीं आएगा भाई। इट्स इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस, एंड व्हाट अबाउट इट्स मार्केट इन द इंटरनेशनल, इट्स वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट, डी तो नहीं आना चाहिए। व्हाट अबाउट इट्स वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस। सर ये मैंने तोड़ के किया था, इट्स को इट इज करके, तो सी आ रहा था। इट इज इम्पेरेटिव
that is study hard for success. What is it about? It is performance. हाँ ठीक है, सही आएगा. Amidst Amidst all the confusion, the thief managed to सर ऑप्शन Think- 3 अच्छा, amidst के तो भाई काफी सारे मीनिंग्स निकलती है ना. हाँ सर, यहाँ पर क्या है इसकी मीनिंग? मतलब सर काफी सारे चीजों में से के होते हुए हम बीच में है ना. यस सर. Amidst then, who do you think is better? There was a lot of confusion amidst his mind. Amidst तो नहीं आएगा भाई यहाँ पर 78 में. ठीक है. Amidst all the confusion, the thief managed to slink away unnoticed. Who amidst you shall be brave enough to pick up the gauntlet. Amidst का मतलब होता है कि बीच में, किसी बीच में है. ये होना चाहिए यार. तो इसमें amidst all the confusion the thief managed to slink away unnoticed, ये सही लग रहा है. There was a lot of confusion in his mind होना चाहिए, amidst his mind नहीं होगा. Amidst them, who do you think is better? Among them होना चाहिए, है ना? Among them, who do you think is better? And who amidst you shall be brave enough to pick up the gauntlet? Who among you आएगा, है ना? Among और amidst वाला फर्क है, ये आएगा इसमें ऑप्शन. Less क्या आएगा? Sugar, there is less sugar. 14 people attending the seminar. Less आएगा, क्या आएगा? Few आएगा वहाँ पे. Fewer. Fewer than, हाँ. है ना? Yes. Less states are fulfilling the targets set by the union ministry. Some ठीक state. आएगा? Few states या 5 states. There is less sugar in the tea than what I asked for. यही आएगा सर. यहाँ पर less आएगा क्योंकि हम quantity की बात कर रहे हैं. टी में again there are few days, very few days left for the examination. ठीक है. Last वाला practice. Sir, it is important to practice regularly to ensure good performance. It is important to practice regularly to ensure good performance on the match day. It is a common practice to greet friends during festival. अच्छा practice ये पहले वाला सही क्यों नहीं होगा? सर वहाँ पे ये चीज है ना, ये नहीं है ना, कॉमन के पहले ये नहीं, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस. हो सकता है उस सबसे, बट वो भी सही है सर. उसकी जगह वो सही, बस एक माइनर सा एरर है उसमें, ए नहीं है वहाँ पे. It has been the practice of academics to recommend students for higher studies. नहीं सर, नहीं होगा. सी वाला सर, ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का इसका मतलब होता है एक रेगुलर एक्टिविटी जिसको आप रेगुलरली परफॉर्म करते हैं. ये वाला वर्ब होता है, वर्ब. और वो दूसरा वाला आपका प्रैक्टिस होता है PRACTIC. उसका क्या मतलब होता है? वो नाउन होता है सर. वो हाँ. आपका क्या बोलते हैं, कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना होता है ना. हाँ. जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, यानी कि एस की जगह सी आ जाता है, तो वो एक कॉमन प्रैक्टिस हो जाता है ना वहां पर. और इट हैज बीन प्रैक्टिस वहां पर भी हो जाता है. इट हैज बीन द प्रैक्टिस ऑफ एकेडमिक्स टू रिकमेंड स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज. उनका एक्शन हो गया. एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ योर नेबर्स दैट यू आर ऑब्जेक्शनिंग टू. अगेन सेम चीज आ जाती है. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली टू इश्योर गुड परफॉर्मेंस ऑन मैच डे. ये हमारा प्रैक्टिस आ जाए. ठीक है, चलिए फिर इतने ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं. ही डैश वेटिंग फॉर यू साइंस सिंस मॉर्निंग. ही इज वेटिंग फॉर यू. He has been waiting for you since morning. If a time machine will take you. would take you anyway, भाई will क्यों नहीं जाएगी? कुछ आएगा सर, कुछ आएगा वो, कुछ आएगा. What you propose is out of the question. Out of the question. end of the question. The campaign is in Full swing. swing. Life has been thrown Out of gear. out of gear due to the weather conditions. The cities में कई सारे हम कर चुके हैं already. Had he told me the news beforehand, I Would have been. would have been and saved my money. He feels that he has been Taken for granted. taken for granted. He has the Silken touch of Silken touch. silken touch of a maestro. He is worth of the Well known.
when known journalist, one of the है ना, तो when known journalist नहीं है ना, journalists आएगा in the country. The population of Mumbai and Delhi is greater than Any other? any other Yes, sir. city in India. ठीक है. Next we are doing usage of paired words. ये आपके वही again homonyms का ही टाइप आ जाता है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट दिया है perspicacity और perspicuity. ठीक है. तो वही क्या आएगा इसका? देखो भाई, पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढ निकालना, एबिलिटी टू Discern. डिस्कशन. ठीक है. और पर्सपिक्यूटी का क्या होता है? ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट का होना. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. कंप्लेसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये शायद 2024 में ही आया था. Yes, sir. Recent one. क्या? Recent 20 पिछला एग्जाम. हाँ, बताइए. 92 ये रिपीटेटिंग होती है भाई. अगर आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो फिर में से कोई भी सेंटेंस आपको आगे बी क्या आएगा? बी B. कंप्लेसेंट का मतलब होता है eager to please एंड कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट C. Compliment means to praise and compliment. एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब तो किसी चीज के साथ बहुत बढ़िया तरीके से अटैच हो जाता है, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से, ये ना, ये ड्रेस तुम्हारे पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इस तरीके से. डिफाइन एंड डिफाइन वही बहुत सारे रिपीटेटिव है. सर ए A. है ना? हाँ सर. ये सर रिपीटेड है. ए आना चाहिए इसका. ये आना चाहिए. किसी डिफाइन का मतलब होता है किसी को देख समझना, और डिफाइन का मतलब होता है अपोज करना. इसमें दो तो भाई दो क्यों? कंप्लेसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट भी पहले हमने सॉल्व कर लिया है अभी, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट भी हमने कर लिया है, और डिफाइन एंड डिफाइन भी हमने कर लिया है ना. ये तीन हमारे ऑलरेडी कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाई होना होता है ना किसी चीज से. कॉम्प्लेसेंट का सेटिस्फाई करना है, सारी चीजें तो है. ठीक है. 95 इवोक एंड इन्वोक. सर बी Sir. का भाई D sir. D. Elicit a response. इवोक का मतलब होता है रिस्पॉन्स निकलवाना, और इन्वोक का मतलब होता है किसी को कॉल करना, है ना. जैसे यज्ञ किया और आपने किसी देवता को इन्वोक किया. सिंपैथी एंड एम्पैथी ये तो बहुत इजी है. A sir. Sympathy means sharing another. सिंपैथी का मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करना, है ना. और एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझ. आई एम्पैथाइज विद योर पेन, है ना. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. C. Exclude one. एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना. रिवॉर्ड एंड अवॉर्ड. Sir. Reward is compensation for effort and award is prize for recognition. बिल्कुल. आपके एफर्ट के लिए कंपनसेट किया जाता है तो रिवॉर्ड होता है ना. द विक्टिम्स हैव बीन रिवॉर्डेड विद दिस मच मनी, एंड अवार्ड इज फॉर द प्राइज फॉर रिकॉग्निशन. फलाना अवार्ड या आपको दिया. अगेन एमिग्रेट और इमिग्रेट ये तो बहुत इजी है. सर पहला होना चाहिए इसमें. B. ठीक है. ये जाते हैं, ट्रेसपासर्स होते हैं. So D. To leave for another country, और immigrate का मतलब होता है arrive at another country. सबसे लास्ट emulate and emulate. सर सी. Self immolation वर्ड सुना है? आत्मदान. Sacrifice. To sacrifice and emulate to follow someone out of. Admiration. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स पे. ग्रामेटिकल पार्ट है. It would be nice to have a good evening stroll up after 5 hours of office. It would be nice to have a good evening stroll after 5 hours of office. क्या होगी गलती इसमें? Actually, how the damning. No error लग रहा. नहीं
नो एरर सर। Arnav likes geography more than he likes history, but मुझे हिस्ट्री ज्यादा पसंद है। वैसे ज्योग्राफी भी पसंद है, दोनों ही बराबर पसंद है, लेकिन आंसर क्या है? More than history than he likes. हिस्ट्री होगा ही। More than history likes, ये सही तो लिखा है। More than he likes history. He likes, सही है। Arun likes geography more than he likes history. यहाँ पर भी नो एरर आएगा। While the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India. सर हैज मेड होगा, हैज बीन मेड न्यू। क्या? हैज मेड, Had been, हैज ओनली बीन। एज आएगा, बीन हट जाएगा। अपने स्पेस में क्या है? सर विंड पावर टू हैज मेड स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड। Had been made, अच्छा, to had made, हाँ, to had made steady progress, sorry, to has made steady progress across the world and in India. Pride brings a great dealing of vanity and egoistic fixation. A great deal of vanity. A great deal of vanity. Persuasion happens only when someone takes a stand from which he was unwilling इज अनविलिंग, Or for which he is unwilling to move. from which he Yes. इज अनविलिंग। was unwilling to move. Was that. The food consumed is converted and the body is only में error है sir. इसमें इन द बॉडी, इन द बॉडी। He may be. नहीं, ठीक है, 106. सर बी कन्वर्टेड इन द बॉडी होगा। Food He may is converted इन क्या? इन आएगा सर, इन इन्हीं तो लिखा हुआ है फिर। बाय। अच्छा सॉरी, ऑन लिखा हुआ था, सॉरी। In the body through glucose, my bad. This testing method requires one error at the क्या बी पार्ट में है, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब बी पार्ट में एरर है। 1 to fast overnight for which the fasting blood sugar level is नहीं पहले बोला मुझे, sorry ऐसे कैसे काम चलेगा? आप पहले बोलोगे तो इंटरप्ट मत करो, जब मैं पूरा सेंटेंस बोलूं उसके बाद में सजेस्ट करो। This testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar is measured. Sugar level is measured. बी में एरर होना चाहिए सर। No error. ठीक है, No error. क्या एरर होगा बताओ? लाइक जैसे कि ये बोला ना कि भाई क्या चीज के लिए 1 to fast overnight for which, तो वो तभी हो पाएगा, मतलब ब्लड शुगर लेवल तभी मेजर हो पाएगा। ओवरनाइट तो हमारा एक टाइम पीरियड आ रहा है, तो टाइम पीरियड का तो आफ्टर ही आएगा ना, फॉर ईच में आओ। मतलब फॉर विच ये दर्शाता है कि ये शुगर लेवल तभी हो, मतलब मेजर हो पाएगा जब फास्ट करेंगे ओवरनाइट के लिए, फॉर विच उसी के कारण। इसमें तो आप सेंटेंस आगे काउंट करो। दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स वन टू फास्ट ओवरनाइट, तो ये भाई हमारा पहला फ्रेज हो गया है ना। अब आफ्टर विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड, फोर विच नहीं आएगा। अगर फोर विच करेंगे तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स वन टू फास्ट ओवरनाइट फॉर विच दैट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड। नहीं, ओवरनाइट के लिए मेजर नहीं किया जा रहा, ओवरनाइट के बाद मेजर किया जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा सही होगा, यानी कि नो एरर। नो एरर सर। Multiple research papers have laid emphasis on the importance of walking to improve glucose control. तो इम्प्रूव नहीं होगा। Glucose control, ठीक है। And हाँ ठीक है। This also allows individual writers to play his strength. Play their strength. See. See. As a screenwriter, there are broadly speaking two kinds of jobs in the film world. Kinds. See. Broadly speaking, there. लास्ट आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। He headed the Indian freedom struggle, which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century. Relative. Relative pronoun.
पहली बात तो ये प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि इसमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा गया है। Where there is a peace for some time, there will be prosperity. adverb, Adverb है भाई, modified किया गया है। Alas, we have been defeated. interjection, Interjection है। A zero is a zero always. noun, Noun है। May you be blessed with all good things of life. Things कैसी हैं? Good हैं। ये adjective हो गया। Adjective से पहले क्या आएगा? adverb, The lake is one of the more beautiful ones in the country. adjective, Is the one of the more beautiful, है ना? Beautiful है भाई हमारा adjective हो गया। और अगर more को करते तो more क्या आता? Adverb. adverb, Honesty is the best policy. uncountable noun, Uncountable noun है, abstract noun की कैटेगरी में आ जाता है। There is many a slip between the cup and the lip. Preposition. Preposition है। Ravi and Megha reached first, but Guha and Sabi finished third. Connection. Tenses को जोड़ा जा रहा है ना? conjunction, Conjunction. He is the most sought after teacher in the school. determine, Determiner. अब देख लीजिए आप लोग, हम लोगों ने ऑलरेडी 2022 में भी कर लिए है। कल हम लोग कल हम लोग जो है 2022 का ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप लोग पढ़ के आइए, थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करके आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, जैसा मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं। ये रिपीटेटिव चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो अगर आपके इजी मार्क्स, जो आपके मार्क्स कटते हैं ना थोड़े इधर उधर, वो सारे मार्क्स आपके बच जाएंगे, आपके कटेंगे नहीं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इनको टाइम से पढ़ के आए, समझ के आए। एग्जाम तक हमारा ये बात 14 तारीख है ना, और आज हमने कितने कर लिए? तकरीबन 2 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं अभी। तो वही हमारा ये रहेगा कि भाई 1 सितंबर से पहले पहले तक हम तकरीबन 5-10 साल के तो क्वेश्चन पेपर करेंगे। 5 साल के तो आपके हो ही जाएंगे, है ना? उसके साथ साथ हम और भी बढ़ा सकते हैं, उनको नंबर उनका और हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है।